ایوب 16واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو۔ کیا لوگو باتیں کبھی ختم ہوں گی؟ تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا، بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گساری تم کو تسلی دیتی۔ اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی، اور گو چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے۔ پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا، تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا۔ تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے۔ میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ اس نے اپنے غضب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے۔ اس نے مجھ پر دانت پیسے۔ میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے مجھ پر منہ پسارا ہے۔ انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے۔ وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں۔ خدا مجھے بے دینوں کے حوالہ کرتا ہے اور شریروں کے ہاتھ میں مجھے سپرد کرتا ہے۔ میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے۔ اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا، اور میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے۔ وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے۔ وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے۔ میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے۔ میرا منہ روتے روتے سوج گیا ہے، اور میری پلکوں پر موت کا سایہ ہے۔ اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے۔ اے زمین، میرے خون کو نہ ڈھکنا، اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے۔ اب بھی دیکھ، میرا گواہ آسمان پر ہے، اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے، تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم زاد کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے، کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستہ سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں۔ ایوب 17 باب۔ میری جان تباہ ہو گئی، میرے دن ہو چکے، قبر میرے لیے تیار ہے۔ یقیناً ہنسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے۔ ضمانت دے، اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے؟ کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا۔ جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتا ہے، اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی۔ اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے، اور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ میرے منہ پر تھوکیں۔ میری آنکھ غم کے مارے دھندلا گئی، اور میرے سب اعضاء پرچھائیاں کی مانند ہیں۔ راست باز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے، اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف
जोश में आएगा, तो भी सादिक अपनी राह में साबित कदम रहेगा, और जिसके हाथ साफ हैं वो जोरावर ही होता जाएगा। पर तुम सब के सब आते हो तो आओ, मुझे तुम्हारे दरमियान एक भी अक्लमंद आदमी ना मिलेगा। मेरे दिन हो चुके, मेरे मकसूद बल्कि मेरे दिल के अरमान मिट गए। वो रात को दिन से बदलते हैं, वो कहते हैं रोशनी तारीकी के नजदीक है। अगर मैं उम्मीद करूं कि पाताल मेरा घर है, अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछौना बिछा लिया है, अगर मैंने सड़ाहट से कहा कि तू मेरा बाप है, और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है, तो मेरी उम्मीद कहाँ रही? और जो मेरी उम्मीद है उसे कौन देखेगा? वो पाताल के फाटकों तक नीचे उतर जाएगी, जब हम मिलकर खाक में आराम पाएंगे। अय्यूब 18वां बाब। तब बिलदद सौखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्जों की जुस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे। हम क्यों जानवरों की मानिंद समझे जाते और तुम्हारी नजर में नापाक ठहरे हैं? तू जो अपने कहर में अपने को फाड़ता है, तो क्या जमीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी, या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा, और उसकी आग का शोला बेनूर हो जाएगा। रोशनी उसके डेरों में तारीकी हो जाएगी, और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। उसकी कुव्वत के कदम छोटे किए जाएंगे, और उसकी मसलहत उसे नीचे गिराएगी, क्योंकि वो अपने ही पांव से जाल में फंसता है और फंदों पर चलता है। दाम उसकी एड़ी को पकड़ लेगा और जाल उसको फंसा लेगा। कमंद उसके लिए जमीन में छिपा दी गई है, और फंदा उसके लिए रास्ता में रखा गया है। दहशतनाक चीजें हर तरफ से उसे डराएंगी, और उसके दर पे होकर उसको भगाएंगी। उसका जोर भूख का मारा होगा, और आफत उसके शामिले हाल रहेगी। वो उसके जिस्म के अज़ा को खा जाएगी, बल्कि मौत का पहलूठा उसके अज़ा को चट कर जाएगा। वो अपने डेरे से जिस पर उसका भरोसा है उखाड़ दिया जाएगा, और दहशत के बादशाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। वो जो उसका नहीं, उसके डेरों में बसेगा। उसके मकान पर गंधक छतराई जाएगी, नीचे उसकी जड़ें सुखाई जाएंगी, और ऊपर उसकी डाली काटी जाएगी। उसकी यादगार जमीन पर से मिट जाएगी, और कूचों में उसका नाम न होगा। वो रोशनी से अंधेरे में हका दिया जाएगा, और दुनिया से खदेड़ दिया जाएगा। उसके लोगों में उसका ना कोई बेटा होगा ना पोता, और जहां वो टिका हुआ था वहां कोई उसका बाकी ना रहेगा। वो जो पीछे आने वाले हैं उसके दिन पर हैरान होंगे, जैसे वो जो पहले हुए डर गए थे। नारास्तों के मस्कन यकीनन ऐसे ही हैं, और जो खुदा को नहीं पहचानता उसकी जगह ऐसी ही है। अय्यूब 19वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मुलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो, और माना कि मुझसे खता हुई। मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबला में अपनी भड़ाई करते हो और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो, तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल से मुझे घेर लिया है।
देखो, मैं जुल्म पुकारता हूँ, पर मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दुहाई देता हूँ, पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूर कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बिछा दिया है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सिर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया। बस मैं तो हो लिया, और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला। उसने अपने गजब को भी मेरे खिलाफ भड़काया है, और वो मुझे अपने मुखालिफों में शुमार करता है। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह तैयार करती, और मेरे डेरे के चौगिर्द खैमाजन होती हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है, और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार काम न आए, और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए हैं। मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लौंडियों की नजर में अजनबी हूँ। मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, और वो मुझे जवाब नहीं देता, अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ। मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है, और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाजा कसते हैं। मेरे सब हमजाद दोस्त मुझसे नफरत करते हैं, और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं, और मैं बाल बाल बच निकला हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर भारी है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो और मेरे गोश्त पर कनात नहीं करते? काश के मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश के वो किसी किताब में कलमबंद होती, काश के वो लोहे के कलम और सीसे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो, हम उसे कैसा कैसा सताएंगे, हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। अय्यूब 20वां बाब। तब जोफर नामाती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं, उस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झिड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है, और मेरी अकल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू कदीम जमाना की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान जमीन पर बसाया गया, कि शरीरों की फतह चंद रोजा है, और बेदीनों की खुशी दम भर की है। खा उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए, और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वो अपने ही फुजला की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे, वो कहाँ है? वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा और फिर न मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। जिस आंख ने उसे देखा, वो उसे फिर न देखेगी,
न उसका मकान उसे फिर कभी दिखेगा। उसकी औलाद गरीबों की खुशामद करेगी, और उसी के हाथ उसकी दौलत को वापस देंगे। उसकी हड्डियां उसकी जवानी से पुर हैं, पर वो उसके साथ खाक में मिल जाएगी। खा शरारत उसको मीठी लगे, खा वो उसे अपनी जुबान के नीचे छिपाए, खा वो उसे बचा रखे और ना छोड़े, बल्कि उसे अपने मुंह के अंदर दबा रखे, तो भी उसका खाना उसकी अंतड़ियों में बदल गया है। वो उसके अंदर इफ्फी का जहर है। वो दौलत को निगल गया है, पर वो उसे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। वो इफ्फी का जहर चूसेगा, इफ्फी की जुबान उसे मार डालेगी। वो दरियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। जिस चीज के लिए उसने मुशक्कत खींची, उसे वो वापस करेगा और निगलेगा नहीं। जो माल उसने जमा किया, उसके मुताबिक वो खुशी न करेगा, क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म किया और उन्हें तर्क कर दिया। उसने जबरदस्ती घर छीना, पर वो उसे बनाने ना पाएगा, इस सबब से कि वो अपने बातन में आसूदगी से वाकिफ न हुआ। वो अपनी दिलपसंद चीजों में से कुछ नहीं बचाएगा। कोई चीज ऐसी बाकी न रही जिसको उसने निगला ना हो। इसलिए उसकी इकबाल मंदी कायम न रहेगी। अपनी कमाल आसूदा हाली में भी वो तंगी में होगा। हर दुखियारे का हाथ उस पर पड़ेगा। जब वो अपना पेट भरने पर होगा, तो खुदा अपना कहरे शदीद उस पर नाजल करेगा, और जब वो खाता होगा, तब ये उस पर बरसेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा, लेकिन पीतल की कमान उसे छेद डालेगी। वो तीर निकालेगा, और वो उसके जिस्म से बाहर आएगा। उसकी चमकती नोक उसके पित्ते से निकलेगी। दहशत उस पर छाई हुई है, सारी तारीकी उसके खजानों के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं, उसे खा जाएगी। वो उसे जो उसके डेरे में बचा हुआ होगा भस्म कर देगी। आसमान उसकी बदी को जाहिर कर देगा, और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। खुदा के गजब के दिन उसका माल जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा, और उसके लिए खुदा की मुकर्रर की हुई मेरास यही है।